Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Today we are going to finish our lesson number 9, named as the last lesson. Actually, this is third part. In book there is no mention of being lesson in different parts, but we have done it for purpose of segregating this in 3 classes. So, what happens in the next slides? Before that, we must conclude that what had happened earlier. French has come to school. He is highly surprised that some villagers are standing near bulletin board. In school he noticed that teacher didn't beat him, and later he also noticed that class was full of some villagers. Finally teacher declared that from today there is from after today's class there will be no French class. So, student means all the students and friends come to know that there is a change in our education system, means from next day only German will be taught in this school. Suddenly students with friends began to feel that teacher is very good and all his books are very good. From that, in next some we can say or teacher gives him them history lesson, then grammar lesson, then he gives them writing, and all these things are happening. And let's see what happens further and what is the conclusion of the lesson. Okay, as you can see that we are heading toward part third. Okay, this is part third. Okay, French says that whenever I looked up from my writing, actually before this slide we were in the procedure that French was doing some writing work, means French क्या कर रहा था, वो सुलेख लिख रहा था, and what was given them as a we can say सुलेख or writing practice, that was given a new copies and it was written French Elsec. Whenever I looked up from my writing, during writing when French looked up from his writing, he was writing with serious mind, and when he looked up from his writing, he noticed that M. Hamel sitting motionless. What do you mean by motionless? Means M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing. What do you mean by gazing? Looking seriously. Looking seriously. Okay, M. French was writing, and within writing he noticed that Mr. M. Hamel was sitting motionless in his chair and he was looking in a serious manner, first at one thing, then at another. Means M. Hamel was looking all the things present in that class. Writer says that ऐसा लग रहा था कि M. Hamel यहाँ से जाने से पहले हर चीज को अपनी यादों में बसाकर ले जाना चाहता है. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Before going, Mr. M. Hamel wanted to keep all things memorable in his mind. वो जाने से पहले अपने दिमाग में हर जो चीज़ है उस कक्षा की जहाँ उसने लास्ट 40 ईयर्स जो है वो पढ़ाने में दिए हैं, उन सब चीज़ों को वो यादों के तौर पर समेट के अपने दिमाग में ले जाना चाहते थे. इसलिए वो स्थिर बैठे थे, लेकिन क्लास में हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से गौर से देख रहे थे. फैंसी, व्हाट डू यू मीन बाय फैंसी? यार फैंसी मीन्स थिंक. राइटर सेज टू अस दैट थिंक, का आप सोचकर देखिए. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. आप सोच के खुद समझिए कि वो 40 सालों से इसी जगह पर काम कर रहा है. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट. बिल्कुल ऐसे. सोचने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए ये उस टीचर का जो है वो क्लासरूम है. सपोज ये उस टीचर का क्लासरूम है या ये उस टीचर का क्लासरूम है, और साइड में जो है वो गार्डन है. साइड में जो है उसका गार्डन है जिसमें उसने खूब सारे पौधे लगा रखे हैं, और उसके ऊपर जो है वो टीचर रहता है. तो राइटर यही कहना चाह रहा है कि सोचिए ऐसे टीचर के लिए जो क्लास में पढ़ा रहा है, बाहर उसका गार्डन है और उसके ऊपर वो रिसाइड करता है या रहता है. सो ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस हैड बीन वॉर्न. व्हाट डू यू मीन बाय वॉर्न? इन हिंदी वी कैन से घिस जाना.
हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, घिस जाना। स्मूथ आप जानते हैं चिकना, केवल बेंच ऐसी थी जो घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। वॉलनट मीन्स व्हाट, इन हिंदी वी कैन से अखरोट, इन हिंदी वी कैन से अखरोट। केवल अखरोट के जो पेड़ थे बगीचे में वो अब क्या हो गए थे, काफी लंबे हो गए थे। अखरोट के पेड़ जो थे लंबे हो गए थे। एंड दी होप वाइन, एंड दी होप वाइन, ये एक प्रकार की क्या है, बेल है। ये एक प्रकार की क्या है, बेल है, या ये एक प्रकार की लता है। ये जो लता है, दैट ही हैड प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब क्या होता है, प्लांट यानी पौधा होता है, प्लांट यानी संयंत्र भी होता है, कोई जहाँ स्टील की फैक्ट्री उसे भी स्टील प्लांट बोलते हैं। यहाँ होगा रोपण करना, यहाँ होगा रोपण करना। ओके, हिमसेल्फ ट्वाइंड, व्हाट डू यू मीन बाय ट्वाइंड, मीन्स डबल्ड। ट्वाइंड मीन्स व्हाट, डबल्ड, मतलब दुगुनी हो गई, दुगुनी वृद्धि कर ली। किसने, उस होप वाइन ने, जो कि उसने दैट ही हैड प्लांटेड, जिसका रोपण उसने क्या किया था, खुद ने किया था। खुद ने किसने, एम हेमल ने जो है वो खुद ने वो जो क्या बोल सकते हैं, जो लता है उसको लगाया था। लेखक ये कहना चाह रहा है कि उसने 40 साल यहाँ काम किया है, और जब वो आया है तब से वो यहीं है। सामने उसकी क्लास है, साइड में उसका गार्डन है, और स्कूल के ऊपर वो रहता है। राइटर जो है वो ये कहना चाहता है कि ये जो कंडीशंस है वो बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। फ़र्क इतना हुआ इन 40 साल में कि जो बेंच और डेस्क थी वो घिस घिस के चिकनी हो गई है। जो अखरोट का पेड़ है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और होप वाइन नाम की जो बेल या लता है जो उसने खुद ने लगाई थी वो डबल हो गई है। वो क्या हो गई है, डबल हो गई। और कितनी डबल हो गई है, अबाउट, अबाउट का मतलब बारे में भी होता है, और अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। वो डबल होके क्या हो गई है, वो लगभग विंडो टू द रूफ, छत की खिड़की तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स तोड़ना, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कितना जो है उसके लिए ये दिल तोड़ देने वाली बात होगी। हार्ट यानी उसका दिल तोड़ देने वाली बात होगी। टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़कर जाना, पुअर मैन, बेचारे सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ, और सर जहाँ ऊपर रहते हैं वहां पे उनकी जो सिस्टर है वो उनके सामान को क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। दे ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रंक के कई, हाथी की सूंड को भी ट्रंक बोला जाता है। यहाँ होगा बक्सा। तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा जब उन्हें पता चला कि ऊपर उनकी जो बहन है वो क्या कर रही है, बक्सों को पैक कर रही है। उन्हें आखिरकार ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। ओके, लेसन काफ़ी इमोशनल हो रहा है। बच्चे से जो लेसन है वो टीचर पर सेंटर्ड हो गया। पहले लेसन में बच्चे की बात कर रहे थे, अब जो है लेसन टीचर पे आ गया है। ओके, बट ही हैड द करेज, करेज मीन्स व्हाट, हिम्मत। करेज को क्या कह सकते हैं, हिम्मत। लेकिन उनमें वो हिम्मत थी टू हियर लेसन टू द वेरी लास्ट, though it was their last lesson and this was last day for M. Hamel, but he was so good teacher, वो इतना अच्छा अध्यापक था that even on the last day, in spite of talking, having some chit chat or some gossip or memorizing some other memories, he is deeply involved in teaching। मतलब दूसरी बातें भी कर सकता था वो। इतने सालों में उसने क्या देखा, क्या परिवर्तन किया, अब उसका यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग है, ये सब भी वो डिस्कस कर सकता था। लेकिन नहीं, वो एक आइडियल टीचर था, उसका काम पढ़ाना था, और वो आज भी पढ़ा ही रहा था। आफ्टर द राइटिंग यानी सुलेख के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज, बेबीज यानी बहुत छोटे बच्चे, चैंट, चैंट मीन्स व्हाट, रिसाइट। इन हिंदी वी कैन से वाचन करना। तो जो बच्चे हैं वो वाचन करने लगे। देर बा बे बी बो, ये क्या है, ये बारे खड़ी है फ्रेंच की। डाउन देर एट द बैक ऑफ द रूम, उस बड़े से कमरे के पीछे की तरफ जो बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम आपको पता है, होजर है, हेड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने क्या कर लिया था, अपना स्पेक्टेकल्स मीन्स व्हाट, चश्मा, अपना जो चश्मा है वो पुट ऑन यानी पहन लिया था। वो चश्मा जो है वो क्या किया था, उसने पहना, उसने चश्मा पहना। एंड होल्डिंग, होल्ड मीन्स व्हाट, पकड़ना, और उसने पकड़े रखा हिज प्राइमर, उसके हाथ में जो बाल पोथी थी, प्राइमर को क्या बोलते हैं हम, जैसे मैंने आज बताया था शुरुआत में, बाल पोथी, और उसके हाथ में जो बाल पोथी थी उसको पकड़ा रखा था उसने दोनों हाथ में। स्पेल्ड,
स्पेल मीन्स स्पेलिंग, और वो स्पेलिंग बोल रहा था, वो क्या कर रहा था, स्पेलिंग बोल रहा था, किसके साथ साथ, टीचर के साथ साथ, द लेटर्स विद द, बच्चे जो बारे खड़ी बोल रहे थे फ्रेंच की, उस बारे खड़ी को जो बच्चा बोल ही रहा था, साथ में जो बूढ़ा होजर है वो भी बोल रहा था। ओके, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी, कौन, जो बूढ़ा होजर है वो वीप यानी वो क्या कर रहा था, रो रहा था। बूढ़ा जो होजर है वो भी क्या कर रहा था, रो रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी टीचर के जाने की बात सुन के इमोशनल हो गया था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स व्हाट, इन हिंदी वी कैन से कांपना। ट्रेम्बल का मीनिंग क्या होगा, कांपना, और हम लिख सकते हैं शिवर। जो टीचर है उसकी आवाज कांप रही थी, क्यों, विद इमोशन, मतलब वो इमोशनल हो चुका था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ओल्ड होजर जो है वो इतना इमोशनल हो गया था, बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी उसकी आवाज़ सुन के, उसको इस अंदाज में देख के रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। रोना किस चीज़ का आ रहा था, रोना इस चीज़ का आ रहा था कि सब दुखी तो थे ही, तो उन्हें इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि टीचर जो है कल के बाद चला जाएगा, ये टीचर हमें कभी नहीं पढ़ाएगा, फिर हम फ्रांस के निवासी नहीं, हम जर्मन जो है वो लोग माने जाएंगे। तो बच्चों को इस चीज़ को लेकर दुख भी था। तो इतने वृद्ध आदमी को जब रोते हुए देखा तो बच्चों को भी रोना आया, और उन्हें हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि जो काफ़ी एजेड जो था ओल्ड होजर, उसको रोते हुए देखकर बच्चों को भी जो है वो काफ़ी हंसी आ रही है। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ये बात कौन कह रहा है, ये कह रहा है फ्रेंच, ये बात कह रहा है लड़का, कह रहा है फ्रेंच, कह रहा है अरे मुझे वो जो लास्ट लेसन है वो मुझे आज भी याद है। ऑल दैट एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, स्ट्रक 12, स्ट्रक जनरली स्ट्रक मीन्स व्हाट, क्या, टकराना। तो घड़ी में जो सुइयां होती है वो भी बजाती है, तो उन्हें इंग्लिश में स्ट्रक बोलते हैं। तो घड़ी की जो सुइयां हैं उन्होंने 12 बजने का इशारा किया। देन दी एंजुलियस, व्हाट डू यू मीन बाय एंजुलियस, एंजुलियस मीन्स डे टाइम प्रेयर, दिन के समय की जाने वाली प्रेयर, डे टाइम प्रेयर, दिन के समय की जाने वाली प्रार्थना की जो है वो घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, और उसी क्षण क्या हुआ, उसी क्षण द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मीन्स व्हाट, बिगुल, क्या बजने लगे, बिगुल बजने लगे। उसी समय जो क्या बजने लगे, बिगुल बजने लगे। ऑफ द पर्शियन, उन जर्मनी के सैनिकों का जो कि रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, ड्रिल आई टोल्ड यू ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग करके पीटी परेड करके लौट रहे थे। साउंडेड यानी आवाज आ रही थी, हमें क्या आ रही थी, हमें आवाज आ रही थी अंडर ओवर विंडो, हमारी खिड़की के पास। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो है वो खड़े हुए। वेरी पेल, वेरी पेल मीन्स पेलर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेलर और हिंदी में इसे लिखते हैं पीलापन। उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ था, वो अपनी चेयर में खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा, यानी वो बड़े तनके खड़े थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे मित्रों उन्होंने कहा। आई इज रिटन रॉन्ग, इट इज़ एक्चुअली आई, वो कहते हैं मैं, वो बोल नहीं पा रहे थे। समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक्ड मीन्स व्हाट, ब्लॉक्ड, ब्लॉक, उनका गला हिंदी में कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, उनका गला अवरुद्ध हो गया था किसी चीज से। ही कुड नॉट गो ऑन, यहाँ गो ऑन का मतलब क्या होगा, बोलना, वो ज़्यादा बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बीरिंग, बीरिंग मीन्स व्हाट, हैविंग, होना। और फिर उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया विद ऑल हिज माइट, माइट मीन्स व्हाट, पावर, अपनी उन्होंने पूरी ताकत लगाई, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के चौक का टुकड़ा उठाया। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, फिर वो जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पे लिखा। और क्या लिखा, उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस तुम अमर रहो, ये इसके कहने का मतलब जय हो।
जय हो या जिंदाबाद, फ्रांस तुम्हारा जो है वो प्रभुत्व रहे, या फ्रांस तुम्हारा जो है स्मृति है वो बनी रहे, ऐसा उन्होंने अंत में बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन, लीन मीन्स व्हाट, झुकना, लीन मीन्स व्हाट, झुकना, और हम कह सकते हैं बेंड। उसके बाद वो दीवार की तरफ झुक गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उनका जो हाथ या सिर जो थे वो दीवार के सामने थे। ही वॉज वेरी इमोशनल, ही वॉज अनेबल टू स्पीक एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ भी बोले ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर मीन्स व्हाट, साइन, साइन या इशारा। बिना कुछ बोले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो इशारा किया। और किस चीज़ का इशारा किया उन्होंने, जो इशारा किया उनका मतलब ये था, विदाउट हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। उन्होंने कहा कि आज की स्कूल समाप्त हुई, आप सब जो लोग हैं वो जा सकते हो। और इस प्रकार से स्कूल ख़त्म हुआ, और इसी प्रकार से जो हमारा जो है वो लेसन भी ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू। I hope this lesson was very interesting, because lesson has a special place between relation between a child and his teacher. Same way this lesson has also given us the sufficient knowledge of Persian French war, and this lesson is actually tell us clearly that what happens विद इन ए स्टूडेंट्स माइंड। देखिए जनरली जब मैंने पहले दिन बताया था कि युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी होती है, जो युद्ध है वो किसी भी हालात में अच्छा नहीं होता है, लेकिन युद्ध के बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। लेकिन बस युद्ध की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि युद्ध में यदि देश कूद जाता है तो पीछे हटना फिर उसके बस की बात नहीं रहती। शुरुआत करना निकलना आपके बस में है, लेकिन पीछे हटना फिर आपके बस में नहीं है। तो यही कुछ हुआ था। और एक बच्चे की नज़र में इस युद्ध के स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने आज लेसन में पढ़ा और आज इसे फिनिश किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि आप वो क्लास देखें, इट इज़ माई पर्सनली recommendation that please go through the lesson in a complete manner, read each line, have meaning of each word in your mind, and then come to this question and answer section. It will be really helpful for you, and you will be able to score better marks in your upcoming board exams. Thank you for being with me. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।